Okay, dear student, then today we are going to discuss about new subtopic, that is a Coulomb's law. Then now we explain what is the Coulomb's law. Same as it is similarly in class 11th, one Newton's law of gravitation there. Force is equal to G m1 m2 upon distance square. What is the m1 and m2? Means mass. Then m1 m2 and distance between two masses, that is the r. Okay, that is the Newton's law of gravitation. Clear? F is directly proportional to m1 into m2. F is inversely proportional to r square. Okay, and directly proportional sign we remove, then one constant term, that is a g. Okay, this is g. Then g is the universal gravitational constant. Everywhere directly proportional sign remove, then one constant term will come. Clear? Constant term. Then इसको लिखते हैं नेक्स्ट. सिमिलरली क्या है, ये मास के कारण था, वो नाउ चार्ज के कारण है. देन वन डायग्राम, फॉर एग्जांपल देयर q1 चार्ज and second charge is q2 and distance between them r. Distance between them r. Then the force of interaction between two charges is directly proportional and inversely proportional to the square of distance between two charges. ओके, देयर मीन्स मास ग्रेविटेशनल, वहां पे क्या था, जो ग्रेविटेशनल लेसन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2. हियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज 1 and charge 2. Okay, then write the force of interaction between two charges is directly proportional and inversely proportional to the square of distance between them. Them means what? Between charge. मैं क्या कहता है कि the force of interaction between two charges is two charges directly proportional and inversely proportional to a square between two charges. Then F is directly proportional to the Q1 Q2. Okay, and force is directly inversely proportional to the R square. Okay, then that is the first equation. Second equation, if combined, then force is directly proportional to Q1 Q2 R square. Anywhere directly proportional sign remove करेंगे, then one constant term. Here k is that, this is k and q1 q2 upon r square. Okay, what is the k? The k is the constant term. K is the electrostatic constant, that's this value 9 into 10 power 9. हम कैसे लिखेंगे इसका ऐसा यूनिट? ओके, देन k is equal to, मीन्स k को सब्जेक्ट बनाए तो f into r स्क्वायर अप साइड जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होता है k का. ओके, देन व्हाट इज द q1? q1 is the charge means first charge. q2 means what? Charge second. And r क्या है? What is the r? Distance between two charge. ऐसा यूनिट, चार्ज ऐसा यूनिट कूलम. This is also coulomb. And distance between them means that is a meter. SI unit meter. Clear? Then k equal to what? K equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ये
मीडियम पे भी डिपेंड करता है। के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो एप्सिलॉन नॉट मींस व्हाट? एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इसको, ये तो किसके लिए है? तो एयर के लिए है। एयर के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ इन एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बट फोर्स फॉर मीडियम, एयर के लिए और वैक्यूम सेम थिंग, क्लियर? द एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 epsilon naught value. Epsilon naught means what? Permittivity of free space. K value 9 into 10⁻9 directly we can substitute. Then next, then for air, force in air और वैक्यूम, क्या हमने लिखा? K Q1 Q2 by distance square. K means what? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ये किसके लिए? एयर के लिए। बट वैक्यूम के लिए सेम थिंग, एयर के लिए भी हमारा वन ही हम लेते। देन फॉर मीडियम, मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? तो मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपन नहीं लिखना है, वो फ्री स्पेस के लिए है, वैक्यूम के लिए है। तो यहाँ पर EM लिखना है, ओके, EM लिखना है। Q1 Q2 सेम एज इट इज R स्क्वायर। व्हाट इज द EM? Their permittivity of free space, then permittivity of medium. Permittivity of medium. Okay. Then next है EM को रिप्लेस कर सकते हैं हम। Then इसका भी कुछ ये है, EM इक्वल टू व्हाट? द EM डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ER पे, क्लियर? व्हाट इज द ER? देन रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर? देन यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? EM मीन्स एप्सिलॉन नॉट इनटू ER, Q1 Q2 by distance स्क्वायर। डिस्टेंस ऐसा यूनिट मीटर, चार्ज ऐसा यूनिट कूलम। क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा तो आपको ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट करना है, चार्ज को कूलम में कन्वर्ट कीजिए और डिस्टेंस को मीटर में कीजिए, तब फार्मूला लगाइए, ओके, क्लियर? नेक्स्ट मींस कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, बट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। देन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म के जैसा। तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, एंड एक डिस्टेंस यहाँ से कोऑर्डिनेट से R1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट से R2 है। अब फोर्स ड्यू, फॉर एग्जांपल हमको निकालना है फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस मींस रिपल्सन, रिपल्सन मींस फार अवे, लाइक दिस डायरेक्शन, a force at 1 due to 2. Okay, then F12 what we can write? F12 equal to force vector quantity multiply vector quantity। क्या होता है? vector quantity equal to unit vector multiply magnitude। magnitude हम जानते हैं, ओके। then K Q1 स्क्वायर, Q1 Q2 ये magnitude में ही लिखा है अपॉन R स्क्वायर,
ओके नेक्स्ट, अब यूनिट वेक्टर लिखिए। तो यूनिट वेक्टर कहाँ से, तो एट 1 पे ड्यू टू 2 लग रहा है, तो 2 से हम 1 का डिस्टेंस लेंगे, 2 to 1। यहाँ पे 1 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे 2 1 लेंगे, और ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, के Q1 Q2 बाई R21 मीन्स व्हाट, ये R21 हमने लिखा है यहाँ पे स्केलर फॉर्म। द R21 मीन्स क्या होता है, द ए कंप्लीट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड I into unit vector. Okay, then unit vector equal to complete vector by magnitude. क्लियर। देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R21 ये है ही, ये मैग्नीट्यूड है, R21 मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं R21 वेक्टर अप साइड, डाउन साइड में R21 यूनिट वेक्टर। क्लियर। अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं इसको, फर्दर वी कैन राइट के Q1 Q2 बाई, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, देन R21 मीन्स क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड है 1 चार्ज से 2 चार्ज तक, अप साइड में R21 वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी वैसा ही है। ओके, समझ में आया, वेरी इजी लैंग्वेज। तो ये वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में हमने सब देख लिया। एंड चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि हमारी वीडियो नेक्स्ट आप तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। एंड देन an equilateral triangle of each side is L and charge at each corner is Q coulomb. Q coulomb. Find net force at any one corner. देन ये हमारा चार्ज Q हो गया। An equilateral triangle of each side is L and charge at each corner is Q. Each corner Q. And there is also Q. This is also Q. For example, A, B, C. कहीं पे आप फोर्स फाइंड कीजिए, फाइंड नेट फोर्स। देन हम जानते हैं कि यहाँ पे Q है, ये भी प्लस Q है, तो A पे, A और C के बीच में क्या है, ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, तो A दुश्मनी है दोनों में, पॉजिटिव पॉजिटिव। तर ये A पॉइंट पे C वाला क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो फार अवे, देन इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स एट A ड्यू टू C वी कैन लिख सकते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, के Q1 Q2 देन के Q1 Q2 Q स्क्वायर बाई
एल स्क्वायर, ईच साइड एल गिवन, देन दोनों का डिस्टेंस क्या है, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर? इधर स्पेस नहीं है, इधर लिखते हैं फोर्स एट ए ड्यू टू सी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ड्यू टू बी। Okay, then force at A due to B, same that is again plus repulsion K Q square by L square, that is 60 डिग्री। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ए सी इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ ए बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। देन एफ नेट इक्वल टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 FAB ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ए मीन्स FAB FAC 2AB cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। देन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसको FF मान लेते हैं। F IF क्या है, तो हमको मालूम है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है। अगेन हम लिखते हैं इसको एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 FF cos 60 डिग्री। ओके, देन एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 FF स्क्वायर cos 60 डिग्री मीन्स 1/2। देन एफ स्क्वायर प्लस देन एफ रूट 3 हम लिख सकते हैं इसको, है ना। एफ क्या है, एफ हमने लेट किया है, वहीं सब्स्टिट्यूट कर देना है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। क्वालिटी से हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले, लेवल मीन्स अच्छा लेवल पे यहाँ पे कंटेंट रहेगा। वन मोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन स्क्वायर of each side is L meter and charge at each corner is Q coulomb. Find net force at any one corner. Okay, देन ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे बना लिया हमने। एक ईच कॉर्नर पे चार्ज क्या है, क्यू कूलम, क्यू कैपिटल ही शो कर दें, क्यू 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 एंड एल ईच साइड एल। ओके, देन इसको भी हम क्या करते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3 4। अब 1 पे कहीं पे भी फाइंड करेंगे नेट फोर्स एक ही निकलेगा। देन फॉर एग्जांपल 1 पे, देन क्यू क्यू अगेन प्लस प्लस है, प्लस प्लस मीन्स रिपल्सन, चार्ज प्रॉपर्टीज, लाइक चार्ज रिपल्सन, अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। ओके, देन फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू के क्यू 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 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एंड फोर्स एट 1 ड्यू टू 4 डाउन साइड जाएगा, एट 1 ड्यू टू 4 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दोनों के बीच में डिग्री 90 डिग्री का है। एक और है थर्ड चार्ज, ठीक है ना, थर्ड चार्ज ये वो भी प्लस प्लस है, तो इस तरफ रिपल्सन हो जाएगा उसका। तो फोर्स है एट 1 ड्यू टू 3 के क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, देन एल
L रूट अंडर then 2 रूट L ओके देन इसमें करेंगे तो 2 रूट L स्क्वायर हो जाएगा क्लियर। अब क्या करते हैं अब F12 F14 के कारण ये इस तरफ आएगा क्लियर F12 F14 के कारण ये इस तरफ आएगा और उसी डायरेक्शन में क्या है F13 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं F नेट इक्वल टू रूट अंडर F12 स्क्वायर प्लस F14 स्क्वायर प्लस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है देन 2F1 a square plus b square plus 2ab means a means this b means this and cos 90 डिग्री अब प्लस आउटसाइड ये है उसी डायरेक्शन एकदम देन F13 ओके अब अगेन क्या करते हैं F12 देख रहे हैं F14 देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है देन F12 इक्वल टू F14 इक्वल टू F लेट कर लेते हैं IF इक्वल टू हम जानते हैं ये क्या है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर देन F net इक्वल टू then F12 means what F square plus F214 means F square plus 2F cos 190 डिग्री आउटसाइड में जो हमारा F13 है इसको cos 90 डिग्री जीरो होता है आपको मालूम है अगेन इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई F स्क्वायर क्या हो गया 2F स्क्वायर हो गया प्लस F13 अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं F रूट 2 हो गया प्लस F13 अगेन इसको लिखते हैं F मीन्स व्हाट के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस F13 मीन्स देर भी जानते हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर देन इसको क्या कर सकते हैं हम के क्यू स्क्वायर जो कॉमन है तो कॉमन निकालिए एल स्क्वायर देन इन साइड में क्या हो गया रूट 2 प्लस 1 बाई 2 देन ये हमारा हो गया आंसर क्लियर देन इस तरह से हमको करना है सब एवरीथिंग मीन्स वेरी इजी ओनली अंडरस्टैंड क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे किया जाता है समझना प्रैक्टिस करना देन सब कुछ इजी हो जाएगा फिर अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे कूलम्स लॉ पे देन आफ्टर वी गो थ्रू मीन्स नेक्स्ट सब टॉपिक